था तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुला था तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My beloved children of God, I am so happy to see you all through this program. मेरे प्रिय बच्चों, इस कार्यक्रम के द्वारा आप सबों से मिलते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। As we have gathered this morning, the Lord is here in the midst of us. जैसे कि अभी आज सुबह हम प्रभु के उपस्थिति में हैं, प्रभु इस वक्त हमारे बीच में He है has given so many promises in the Word of God. और प्रभु ने अपने वचन में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हमें दी है। Among those promises, we find one beautiful promise in 3 John 2. और उन कई वचनों में से एक सुंदर सा वचन है 3 यूहन्ना 2। There he says, Beloved, I wish above all things that you should prosper as your soul prospers. और इस वचन में कहा गया है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में उन्नति करे, वैसे ही तू भला चंगा रहे। This is the mind of God. और ये प्रभु का मन है। You should prosper in all things. और आप सब चीजों में उन्नति करें, यही प्रभु चाहते हैं। And if you read Psalm 23 verse 6 also, अगर आप भजन संहिता 23:6 को पढ़ेंगे, there we read that God is blessing us with all His goodness and mercy. और उसमें हम पढ़ते हैं, और प्रभु हमें सारी भलाई और करुणा से आशीषित कर रहे हैं। The Lord promises that He will bless us with all these और blessings. प्रभु आज के दिन हमसे ये प्रतिज्ञा करते हैं कि इन सारे आशीषों से हमें Now we are आशीषित going करेंगे। to see how we can get all the blessings in all through our lives. और अभी हम ये देखेंगे कि जीवन भर किस तरह हम प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। Now we are going to see how we can receive all these blessings throughout our lives. और अभी हम देखेंगे कि जीवन भर ये सारी आशीष हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। Now we are going to hear one beautiful song and then again we will meditate the message. Hallelujah.
My precious brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, as I told you in the beginning, we are going to see how we can receive the blessings of God in all through our life. और जैसे कि मैंने पहले कहा कि जीवन भर हम किस तरह प्रभु की आशीष प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम और जानेंगे। Every day we go through many trials and tribulations. और आजकल हम जीवन में कई तरह की परेशानी और समस्याओं से होकर गुजरते हैं। Our hearts are broken so many times. और कई बार हमारा जो हृदय है टूट जाता है। Sometimes we say, I'm not able to bear this pain. और कई बार हम ऐसा कहते हैं कि हे प्रभु, हम इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे हैं। I don't want to live in this world. और मैं इस संसार में जी नहीं पा रहा हूँ। Every day I have to cry and cry all alone. और प्रतिदिन मुझे अकेला रोना पड़ता है। But the Lord who promised that He will bless us, you know what He says? और प्रभु जिसने ये प्रतिज्ञा की है हमें आशीष देंगे, उन्होंने क्या कहा है? We will see Psalm 147 verse 3 और हम भजन संहिता 147:3 में देखते हैं and Isaiah 61 verse 1. और यशायाह 61:1 को हम देखते हैं। There the Lord says और वहाँ पर प्रभु कहते हैं that He heals the brokenhearted and binds up their wounds. और वहाँ हम पढ़ते हैं खेदित मन वालों को चंगा करते हैं और शोक पर मरहम पट्टी करते हैं। What a beautiful verse it is. और ये कितना सुंदर वचन है। You say there is nobody to heal your broken heart. आप ऐसा कह रहे हैं कि आपके खेदित मन को कोई चंगा नहीं करेगा। But the Lord who has created this world, who has created you says, I will heal your broken heart. और प्रभु जिसने आपकी और इस संसार की रचना की, वो कहते हैं कि वो खेदित मन वाले को चंगा करेंगे। What a great God we have. हमारे पास कितने अच्छे प्रभु हैं। And Psalm 22 verse 24 if we read, अगर आप भजन संहिता 22-24 को पढ़ेंगे, it says, He has not despised nor abhorred the afflictions of the afflicted, nor hidden His face from him, but when he cried out to Him, He hears his cry. उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने दुहाई दी तब उसकी सुन ली। Whenever you cry unto Him, और जब भी आप प्रभु को पुकारते हैं, when you say there is nobody to console you or comfort you, और जब आप कहते हैं कि आपको सांत्वना और आराम देने वाला कोई नहीं Lord है, says, I am here. प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे पास I am हूँ, very close to you. मैं तेरे बहुत निकट हूँ I am ready to help you. और मैं तेरी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। I want to bring you out of all your problems. और मैं तुझे तेरी सारी समस्याओं से बाहर निकालना चाहता हूँ। I am the one who comfort you. और मैं वो प्रभु हूँ जो तुझे सांत्वना दूंगा। 1 Corinthians chapter 1 verse 3, और पहला कुरिन्थियों 1:3 में कहते हैं, He is God of all comfort. और वो सारे सांत्वना के प्रभु हैं। What a good God we have, my precious brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, हमारे पास कितना सुंदर प्रभु हमारे साथ है। Whenever you go through problems, you must remember this. आप जीवन में जब भी समस्याओं से होकर गुजरते हैं, आपको इस वचन को स्मरण करना चाहिए। My God is sufficient for me. मेरा प्रभु मेरे लिए काफी है। Why should I cry? मैं किस लिए रोऊं? He has got all His powers in His hands. और प्रभु के हाथों में सारी सामर्थ है। All the powers. और सारी सामर्थ है। All the powers to bring you out of all your tribulations. और सारी सामर्थ जिससे कि वो आपके सारे दुख और परेशानी से बाहर निकाल सके। What more you need? इससे ज्यादा क्या चाहिए? The thing is, we are not at all looking unto Him. और सबसे मुख्य बात है कि हम उसकी तरफ नहीं If you देखते। read Psalm 121 verse 1, अगर आप भजन संहिता 121:1 को it पढ़ेंगे, says we have to look unto Him. और उसमें कहा गया है कि हमें प्रभु की ओर देखना From Him होगा only all the help comes. और प्रभु से ही सारी सहायता मिलती है। So learn to look unto Him always. इसलिए आप हमेशा ये सीख ले कि हमेशा प्रभु की ओर So देखें। many people are writing unto me, what is prayer? How to speak to the Lord? और मुझे बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं कि प्रार्थना क्या है और प्रभु से कैसे बात कर सकते हैं। Prayer means talking to God. प्रार्थना का मतलब है प्रभु से बात करना। Just as you talk to your brother or friend, you talk to Him. और जैसे आप अपने भाई या दोस्त के साथ बातें करते हैं, उसी तरह आप प्रभु से बात कर सकते हैं। He wants to hear all your cry. और प्रभु आपके सारे पुकार को सुनना He चाहते will हैं reply every cry of yours.
और आपकी सारी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। Yes, he will remove all your tears. हाँ, वो आपके सारे आंसुओं को पहुंचेंगे। There is a girl called Nandini in Bangalore. और बैंगलोर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था From नंदिनी। her 5th year onwards, और 5वें वर्ष से she was affected with rheumatoid arthritis. और उसको एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस नामक बीमारी से जकड़ी थी। That's a terrible disease. और ये एक भयंकर बीमारी है। All throughout your body you will have pain. और आपके पूरे शरीर में बीमारी के कारण पीड़ा होगा। Unbearable pain. और असहनीय पीड़ा था। Poor little girl suffered a lot because of that. और वो बेचारी लड़की इस पीड़ा के कारण बहुत ज्यादा पीड़ा में थी। ನಾನು ತುಂಬ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮಲಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಲಗಿದ್ರೂ ಆ ನೋವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ತಿರ್ಗಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೋವಿರ್ತಿತ್ತು. Many years she suffered. और कई वर्षों तक वो पीड़ा में थी। Everybody has to help her in everything. और सब लोगों ने उसको सब तरह से सहायता की। So the whole family was worried about her life. परंतु उनका जो पूरा जो परिवार था उनके जीवन के बारे में चिंतित था। Once I came to know that she was suffering like that in Bangalore through her relatives. और एक रिश्तेदार जो बैंगलोर में रहते हैं उनके द्वारा मुझे ये मालूम चला कि इसकी बीमारी है। They came to Chennai and told me all about her. और उन्होंने उनकी बीमारी के बारे में सब कुछ मुझसे कहा। Not only that, they said you better talk to her and pray for her over the phone. और उन्होंने कहा कि मैं दूरभाष के द्वारा उनसे बात करूं और प्रार्थना करूं। Immediately I was moved to tears when I heard about her, and I prayed unto the Lord, looking unto the Lord. Lord, you are her only hope. Just help her. और बेटी के बारे में जब मैंने ये सुना तो मेरे आंख आंसू से भर गए और मैंने तुरंत प्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु आप उनकी सहायता कीजिएगा। As I prayed with all my heart, the Lord filled me with His grace, and with His grace and grace alone. और जब मैंने अपने पूरे मन से प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे अपने करुणा से भर दिया। And I prayed for her with all my और heart. मैंने मेरे पूरे हृदय के साथ उसके लिए प्रार्थना की। Immediately the power of God struck that girl. और तुरंत प्रभु की सामर्थ ने उस बेटी को छुआ। It went through all over her body. और वो सामर्थ उस शरीर के अंदर बहना We शुरू are हुआ। here in Chennai, और हम चेन्नई में थे, but she was in Bangalore. परंतु वो बैंगलोर में थी। But the Lord touched her प्रभु ने उसको छुआ and healed her completely. और उसको पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। Doctor said you should not go to any place, you should be at home only. और डॉक्टर ने कहा कि तुझे यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमेशा तुझे घर में रहना चाहिए। You cannot go for work. और तुझे नौकरी के लिए नहीं जाना होगा। You should not do anything. और तुझे कोई काम नहीं करना होगा। But when the power of God touched her body, she was healed completely. परंतु जब प्रभु की सामर्थ ने उसको छुआ, प्रभु ने उसको पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। And she was able to go for work also. और वो काम पे भी जाना शुरू हो गई। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರ ರೀತಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ. What a great God we have. हमारे पास कितने महान परमेश्वर I am हैं। not telling a story. मैं कोई कहानी नहीं सुना रही This हूँ has happened really. और ये सच्ची घटना है। And my beloved friends, मेरे प्रिय दोस्तों, now we are all going to look unto the same God. और अभी हम एक मन के साथ उसी प्रभु की तरफ देखने If you वाले हैं। read Isaiah chapter 30 verse 18, अगर आप यशायाह 30:18 को पढ़ेंगे, it says our God is a merciful and gracious Lord. और हमारा जो प्रभु है अनुग्रहकारी और दयालु प्रभु है। And not only that, और यही नहीं, if you read John 16 verse 33, अगर आप यूहन्ना 16:33 को पढ़ेंगे, the Lord says, प्रभु कहते हैं, in this world you will have tribulation, इस संसार में आपको दुख परेशानी होगा, problem in your home. आपके घर में समस्या होगी, Everywhere you'll go through problem. और आप हर जगह समस्याओं से होकर गुजरेंगे। In your body also you'll go through problem. आपके शरीर के अंदर भी आप वेदना से होकर गुजरेंगे। But परंतु I have overcome the world.
इस संसार पे जय प्राप्त किया है। I, Jesus, have overcome the world. मैं यीशु इस संसार में जय प्राप्त कर चुका So हूँ। be of good cheer. इसलिए आप खुश होइएगा। This is what God has और promised. यही प्रभु आपके लिए आशीष देने The वाले one हैं। who promised will surely do that. और प्रभु जिसने प्रतिज्ञा की है वो अवश्य पूरा करेंगे। He will fulfill all his promises. और प्रभु सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। So my brothers and sisters, इसलिए मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, we are going to believe all these things. और हम इन सारी बातों पे विश्वास करेंगे। Whatever kind of problem you are going through, आप चाहे जीवन में किस तरह की समस्या से the होकर Lord गुजरे, who has promised that you should be in health and prosper in everything will do the same thing to you today. और प्रभु जिसने ये कहा है कि आप हर चीज में उन्नति करें और अच्छे स्वास्थ्य में रहें, वो ये सारे कार्य को आपके जीवन में पूरा करेंगे। Now, this moment we are going to pray, और अभी हम इस क्षण प्रार्थना करने वाले हैं। uniting all our hearts as one heart. और हम अपने हृदय को एक करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। Remember all the problems you are going through. आप सारी समस्याओं को स्मरण कीजिएगा जिससे होकर गुजर रहे हैं। The Lord who touched Nandini, और प्रभु जिसे नंदिनी को छुआ, He is here. और वो यहाँ पर He है, is coming closer to you also. और वो आपके निकट आ रहे हैं, He will heal you. और वो आपको चंगा करेंगे, He will remove all the difficulties in your family और life. आपके पारिवारिक जीवन की सारी समस्याओं को दूर करेंगे। In the place where you work, all the difficulties, tribulations will go away. आपके कार्यस्थल की जो सारी समस्या परेशानी दूर हो जाएगी। Do you believe क्या that? आप विश्वास करते हैं? If you believe, you shall see the glory of. अगर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Our precious Heavenly Father, हे मेरे प्रिय प्रभु, thank you, Lord, for the wonderful presence. आपकी मधुर उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। As we have meditated right now, Lord, be with us and look to the heart of your children. और जैसे कि अभी हमने आपके वचन पे मनन किया, आप हमारे साथ रहेगा और आप अपनी संतान को देखिएगा, You know every heart, oh Father. और आप हर पीड़ा को दूर कीजिएगा। As a father, you love everyone. एक पिता के रूप में आप प्रत्येक जनों से प्रेम करते हैं। Right now they say they are overburdened with so much of worries. और अभी सब कह रहे हैं कि हम बोझ के कारण दबे हुए हैं, I don't want to live in this world at all. और इस संसार में मैं जीना नहीं चाहता हूँ, There is no peace, और कोई शांति नहीं no है, joy, कोई खुशी नहीं है, nobody to love them और कोई भी मुझे प्रेम करने वाला। or comfort them or console हे them. प्रभु, आप उनको सांत्वना और आराम दीजिएगा। Where can I go? मैं कहाँ पर जाऊँ? This problem in the body is troubling me like anything. और ये शरीर में जो मेरी जो पीड़ा है बहुत मुझे सता रही है। How long I can suffer with this हे problem? प्रभु, मैं कितने दिन इस बीमारी और पीड़ा में और जाता। Master, your children are crying and crying and crying. हे प्रभु, तेरे जो संतान है वो रो रहे हैं, रो रहे हैं। You are a gracious God. आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, May your grace come upon each and everyone who cry like that. और इस तरह जो रह रहे ऐसे प्रत्येक जनों पे आपकी करुणा इस वक्त उतरे प्रभु। Send thy power into their bodies, into their souls and into their minds, Master. और इसी वक्त उनके मन, शरीर और आत्मा में आप अपनी सामर्थ को भेजिएगा। Wherever they are going through problem, Master, let it be removed by the power of God. और उनके जीवन में जहाँ जहाँ समस्या से होकर गुजर रहे हर समस्याओं को इसी वक्त यीशु के सामर्थ पे बाहर निकालिए। Have mercy upon them, O Father. हे प्रभु, आप अपने संतान पे दया कीजिएगा। Those who are suffering with various kinds of problem in their family life, और जो अपने पारिवारिक जीवन में अनेक समस्याओं के कारण हैं, let them be released right now by the power of और God. प्रभु के सामर्थ के द्वारा इसी वक्त आप उनको स्वतंत्र कीजिएगा। Let them receive your peace, the divine peace that God gives. और इसी वक्त वो आपकी ईश्वरीय शांति जो आप देते हैं उसको प्राप्त करें, Let them receive it right now. और इसी वक्त वो प्राप्त करें, Everyone should receive it right now. और प्रत्येक जन इस शांति को प्राप्त Take away करे, all the heartaches, Master. और उनके सारी हृदय की वेदना को दूर Remove all कीजिएगा, the agony from their heart. और उनके हृदय से सारी पीड़ा को दूर कीजिएगा, Without their knowledge, let them receive the peace of God. और बिना उनके ज्ञान वो प्रभु की शांति को प्राप्त करें। And also touch their bodies from head to foot, O Father. हे प्रभु, उनको सर से पांव तक आप छुइएगा।
Thank you, Lord. हे प्रभु धन्यवाद, Thank you, Father. धन्यवाद पिता। You are touching your children. आप अपने संतान को छू रहे Remove हैं every problem, और हर समस्याओं को दूर कीजिएगा। whatever big it may be, और वो चाहे कितना बड़ा समस्या or हो small it may be. या छोटा समस्या Let it हो, be gone right now. इसी वक्त यीशु के नाम पे दूर हो I जाए। curse every और मैं problem. हर श्राप देती हूँ समस्याओं को। If they have problem in their hearts, let them be और उनके healed. हृदय में कोई समस्या हो, इसी वक्त उसको चंगा कीजिएगा। Those who have problem in their eyes, let them be और healed. जिसकी आंखों में समस्या है, इसी वक्त आंखों को They चंगा have कीजिएगा। problem in the body, all through the body, let them be healed. Lord, deliver them all in a beautiful way. और जिनके शरीर में पीड़ा है, इसी वक्त अद्भुत रूप से आप उसको चंगा Let them कीजिएगा। receive your power. और इसी वक्त तो आपकी सामर्थ को प्राप्त Let करें। every family, every individual receive your power. और प्रत्येक जन और प्रत्येक परिवार को आप अपनी सामर्थ से भरिएगा। Those who want to live a close walk with thee, और जो कोई आपके निकट चलना चाहते हैं, supply this need also. और इस आवश्यकता को भी आप पूरा कीजिएगा Save their souls. और उनकी आत्मा की रक्षा कीजिएगा। Let them all find thee as their savior. और वो आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार Thank you, करें। Lord. धन्यवाद प्रभु। You are doing that. हे प्रभु, आप ऐसा कर It's रहे हैं coming in their hearts. और इस वक्त उनके हृदय में आप प्रवेश कर रहे हैं It's coming in their family और life. उनके पारिवारिक जीवन में आप प्रवेश कर रहे हैं। Lord, thank you for touching them in their bodies also. हे प्रभु, उनके शरीर को छूने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। Let everyone receive a miracle touch this. हे प्रभु, आज की सुबह प्रत्येक लोग आश्चर्यजनक चंगाई को प्राप्त करें Let them receive a miracle touch right और इसी वक्त now. वो आश्चर्यजनक स्पर्श को प्राप्त Touch करें। everybody, Master. प्रत्येक जनों को छूइएगा। Let them enjoy your peace, your joy. हे प्रभु, आपकी शांति और खुशी का अनुभव करें। Let them have a peaceful family हे life. प्रभु, शांति पूर्वक पारिवारिक जीवन दीजिएगा। As Nandini received a miracle from you, और जैसे नंदिनी ने आपके हाथों से चमत्कार को प्राप्त heal किया everybody, और प्रत्येक जनों को चंगा कीजिएगा। whatever problem it may be. और चाहे कोई भी समस्या हो, Deliver them, Lord. इसी वक्त स्वतंत्र कीजिएगा। Those who are possessed with evil spirit, और इस वक्त जो शैतान के तले दबे let them be हैं, delivered. इसी वक्त स्वतंत्र कीजिएगा। Right now. इसी वक्त, Right now, इसी let वक्त। the power of God come upon everybody. और प्रत्येक जनों पे प्रभु की सामर्थ उतरे। Those who say they don't have work, और जो कहते कि काम नहीं है, those who say they don't have a child, और जो ऐसा कह रहे हैं उनके पास संतान नहीं they are है, not able to get married. और जिनका विवाह नहीं हो रहा है, Touch all these people. और प्रत्येक जनों को छूइएगा। Let them also receive a miracle touch from you, Father. और आज ही के दिन वो आपके द्वारा एक चमत्कारिक स्पर्श को Thank you, प्राप्त Lord. करें। धन्यवाद Thank प्रभु। you, Lord. धन्यवाद Thank you, प्रभु। Lord, for hearing this simple prayer और इस छोटी सी प्रार्थना को सुनने के लिए and धन्यवाद देता answering हूँ। this prayer. और जवाब देने के लिए We धन्यवाद। give you all the glory. और सारी महिमा आपको देते In हैं। Jesus' name we pray. और यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। Amen. आमीन, Amen. आमीन। My precious brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, what a good God, gracious God we have. हमारे पास कितने महान अनुग्रहकारी प्रभु हैं। Are you burdened with so many worries? क्या आप बहुत सारी चिंताओं के सारण दबे हैं? Be not afraid of anything. आप किसी बात के लिए घबराइए मत। As the Lord says, जैसे प्रभु कहते हैं, be of good cheer. आप खुश होइएगा, Believe the Lord. प्रभु पे विश्वास कीजिएगा। Right now, और इसी वक्त, you are free from all your और tribulation, आप इसी वक्त सारी चिंताओं से दूर हैं, all your difficulties, सारी परेशानियों से, all your problems in your body. और आपके शरीर की सारी समस्याएं दूर हो So we रही हैं। have to thank the Lord. इसलिए आपको प्रभु को धन्यवाद देना होगा। Just to thank Him from the bottom of heart. और अभी आप अपने हृदय की गहराई से प्रभु को धन्यवाद कीजिएगा। Just thank Him from the bottom of your heart. और आप अपने हृदय की गहराई से प्रभु को धन्यवाद कहिए। Do you know one secret? क्या आपको एक रहस्य मालूम है? The more you praise Him, और जितना ज्यादा आप स्तुति करेंगे, the more you can feel the presence of God. और आप उतना ज्यादा प्रभु की उपस्थिति को महसूस Right करेंगे। now. इसी वक्त, We are going to close the program, और अभी हम कार्यक्रम को खत्म करने वाले हैं। but you go on thanking the और Lord. परंतु आप लगातार प्रभु को धन्यवाद कहते Go on रहिए। thanking the Lord. लगातार धन्यवाद कहते रहिए, You will see the glory of God coming upon you. और आप प्रभु की महिमा को आपके ऊपर उतरते हुए देखेंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। मैं जीसस कॉल का बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं 2010 में जीसस कॉल में परिवार आशीष की मेंबर बनी। मैं श्रीमती पी राज सिंह, मेरे मिस्टर पुखराज राज सिंह, हम दोनों प्राइवेट जॉब करते हैं और दोनों की सैलरी नहीं के बराबर है।
पर मैं जब परिवार आशीष में मेंबर बनी उसके बाद मुझे इतनी आशीष मिली और उसमें से मैंने अपने कुछ पैसे निकाल के, यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन बनाने के लिए मैंने अपनी सैलरी और मिस्टर की सैलरी से पैसे भेजे, जिससे मुझे इतनी आशीष मिली कि मैंने एक ज़मीन खरीद पाई। और उस आशीष के लिए मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, यीशु बुलाता के लिए, कि मैं बता नहीं सकती। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे एक ईश्वर ने कि एक ज़मीन दिलाया जिसकी मैं कभी कामना नहीं करी थी, जो मुझे मिला है। इसके लिए मैं यीशु बुलाता का मैं धन्यवाद देती हूँ।